Welcome to EduSat Network. Friend, as you know, today we are going to have panel discussion on very important topic, that is issue in higher education. There are various issues that is affecting the higher education like ragging, reservation, semester system. But recently you might have heard the 100% cutoff marks for the admission in some colleges in Delhi University. So on this issue we have a discussion, and very eminent personalities are here in the studio. Professor J.S. Rajput, eminent educationist, former director NCERT and known columnist, and he was awarded for his research UNESCO Award JAM among communists in 2004. And also we have in the studio Professor Mani Bhushan. He is Professor of Political Science, University of Delhi, and has keen eye on the issue related to education. So we will first start with our discussion with the recent development, that is 100% cutoff marks. And we would like to ask first to Professor Mani Bhushan, because he belongs to Delhi University, is that given the cutoff percentage for admission into the prestigious colleges of Delhi University was rising for some years, but this year it reached to the 100%. Was it expected? And we can say that, can we term this mission admission now mission impossible? It is really wonderful, actually. Somebody scoring 100% in mathematics is something you can expect. Even in physics or chemistry, if you are very, very good, maybe. But scoring 100 in English, I'm not sure if Shakespeare or any of the stalwarts of literature would be so sure of himself or herself and go to the examination and say, okay, I'll score 100%. So, coming back to the basics, I think this whole idea of marks as the basis for selection, I think it is more of a system of elimination. There are more number of applicants than you have seats, and so this is to eliminate others, so that some people, the number of seats we have, people come in. Here, when the last time I was here, I had stressed on this point, that the aptitude, the interest of a student should be assessed very clearly, and status or sort of what you call dignity of a course or a college should be detached from the whole concept of career. I have known n number of students going to prestigious so-called colleges and ending up nowhere. And I have seen students going to very mufassil areas, yes, colleges, doing BA program and then emerging to be leading personalities in in their chosen fields. So I think this cut-off percentage, etc., you need to actually deliberate very seriously on this. Why is it that you are giving first class or distinction? In our times, yes, scoring a distinction would mean, okay, we have done something. Now 75% and above, you are not getting admission in your desired college and course. That is true, but one more thing that has come to the fore, that the students who have scored 100% in the CBSE exam, but when they went through the common admission test for admission in the Delhi University exam, they just scored 74%. So does it reflect somewhere that there are some sort of lack in the marking system at CBSE? So yes, this is the question to Professor Rajput, because he has also been director to NCERT. So you know the marking system, how does it happen? You see, the situation which has attracted the attention of everybody this year in the context of Delhi University and the Sri Ram College of Commerce was not unexpected. For the last
4-5 years, CBSE has been under tremendous pressure from various quarters to put only lenient question papers, lenient marking. And I am told that from 2007 to 2011, the number of those who score more than 90% has gone 10 times, has increased 10 times. So this is bound to happen. The basic issue is that when you give marks or grades, you have to make a distinction between the learner attainments. And this distinction has to be done very, very precisely as is humanly possible. Some subjectivity will come in, but not like this, that most of them are above 90%. So that is how it has come. Well, the other issue is, yes, there are some colleges which has attained credibility and reputation. And this has happened because most of the colleges have seen deterioration in the quality maintenance. If you don't have adequate number of teachers in the college or in the university department, then children would definitely not give that much credence to taking admission there. So they feel that Delhi University is being looked after well. At least there would be sufficient staff, there would be better placement, and because of the prestige of the institution, they would like to all go to one institution only. You see, when I read as a former teacher who has been in the field for over more than 4 decades, when I see that somebody who scores 94.5% gives a wrong caste certificate, you know, it raises many questions. What is happening to evaluation system? What is happening to value inculcation among the children? 94.5% is for me a dream percentage. Sure. And such students, and I am told the number goes to around 40 or 50 over the last 3-4 years. So what is required is, it is one thing to be lenient, it is one thing to have an examination stress free, but simultaneously you must remember that there is tremendous competition in life. There will be conflict situations. The children must learn to take decisions. They must be analytical in life. So all these things, if you remove from the question paper, and everybody you put in the 90% and above, then you will face this unrealistic situation, and that is what is happening today. Therefore, a great thing has happened because of this particular episode of 100% cutoff. This is the time for the CBSE to review its evaluation system, and simultaneously it should also coordinate with all other boards. There are about 43 boards in the country. That the evaluation system must coincide. Because somebody getting 90% in a state board and topping the list of candidates, when he comes to 99% or 100% of CBSE, it has to be rationalized. And this is a responsibility of the Government of India and also the Central Board of Secondary Education, because everybody looks towards Central Board. The other point which I would like to mention in a minute, there must be a working relationship between the school education systems and the university system. Yeah. There is no working relationship, an organic, living working relationship. There are many repetitions which happen in from +2 to university stages even today. This has been pointed out many times. But what you do at +2 stage in class 12th or so, you find the same thing being repeated. Now all these things can be eliminated. All these anomalies can be eliminated if school education and university education are looked after by certain mechanism which is organically active all along. Yeah, I would just very quickly point out one thing. I teach political science. Now, when I go to my first class and ask my students on something, just write a piece or just speak out, invariably we come across students who have one-liner, two-liners ready on most issues, but writing one page is an enormous task. The whole school system, education system and examination system, and the college university examination system completely delinked. So what you score at the 12th level is the examination of your cramming and vomiting power. No, very good point you have made. Now the focus is on objective type questions, where you take short answer type questions. Now, if you focus on objective type short answer type only, or mostly, your writing ability is gone. Then you are eliminating the writing ability. You are not insisting on that. Apart from this, what we have noticed that previously is 2 years like the others board, the state board and the
CBSE also 2 years, 9th, 10th, 11th, 12th together were put together, and then the exam was taken and the percentage were decided. But now only 1 year, and that 2 days or 3 days is gap given in two subjects. So this way, students can remember the facts and just vomit it out. So there is no creativity, no time to, you can say, keeping the things in the mind and then putting it into the orders. See, later on, if you go in higher for higher education, Right. you need to be analytical. You need to sort of articulate your arguments properly and then present. You are not being trained at the school level for this. Putting thing in perspective. No, So- this is the time for the CBSE and all others who are connected to conduct researches, analyze their past experiences and see what are the factors because of which this situation has arisen. Now, the point that you have made is also very relevant. It is not a question of only marks. How they are performing outside. Later on. What He pointed skills out they are, that the what topper skills who they had are. 99% in Yeah. English at 12th level could score hardly 70. 74, So 73. this indicates the systems are weak. Because writing ability is not there. So I would like to quote what SRCC principal Mr. PC Jain has said, that we can't help it. If CBSE keeps on awarding marks to students in this manner, we are duty bound to increase the cutoffs. We have limited number of seats and can't admit students more than the number of seats, so the cutoff had to be increased. In this case, He's right. this is right, but what we have found earlier, that there were many students who chose the college not for the course, just for that dream is prestigious college. The dream was to read into that college, but given these situations, I think their dream will stutter. No, So how do you think that those brilliant students who really want to do some things, so there should be a kind of outlet given to them? Yeah. so these things automatically happen in every system. There are some institutions, some university acquires a prestigious position, and people say this is number one, this is number two. Now media is adding to it. Every periodical is now listing colleges and this and that, and universities giving them grades, giving them the positions. So people go by that. The only solution is you have to increase the number of good colleges. You have to increase the number of colleges and see that they really function. Now, you cannot expect a university with 40% academic vacancies to perform at the optimum level. You cannot expect people with on per lecture basis or guest lecturer basis to create a culture of learning and research or innovations. So, this is what our universities are suffering, and that is why the concentration towards Delhi is increasing, because everybody feels that Delhi University is flushed with funds from central government, though this may not really be the position, but the general impression is that the 100% funding comes from Government of India, and therefore there would be no problem. वहाँ किसी अध्यापक की कमी नहीं होगी, किसी सुविधा की कमी नहीं होगी, ये एक सारे देश को पता हुआ, और बाकी देशी all the universities are languishing, and because of resources, because of funds, because of faculty, because of funds for researchers. So this anomaly has to be looked after. So what is going on, the opening of the foreign university, will that help in some way or other way? Because that will one way we can इसके say. ऊपर जो आर्गुमेंट आया था वो ये आया था कि जितने बच्चे हमारे यहाँ आते हैं 12th पास करके, उनमें से सिर्फ 15% के लिए हमारे पास कॉलेजेस हैं, इसलिए बाकी 85% के लिए 11-12% हाँ, तो हमें वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज को यहाँ पे बुलाना होगा। लेकिन मेरी समस्या ये है कि जो 85% ऐसे हैं जिनको एडमिशन नहीं मिल रहा है, उनके 90% ऐसे हैं जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज के पैसे नहीं दे सकते। स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकता। So what is the way out? वे आउट इज स्टेट हैज टू इंटरवीन। स्टेट को एजुकेशन किसी भी समाज के लिए, किसी सिविलाइजेशन के लिए रीढ़ होता है। अगर एजुकेशन को आप विदेशियों के हाथों में सौंपना चाहते हैं तो यू आर एक्चुअली प्लेइंग विद द फ्यूचर ऑफ द नेशन, ऑफ द सिविलाइजेशन। तो बाहर की यूनिवर्सिटीज आकर के किसको आप वहाँ पे पढ़ाएंगे? जो एलीट, जो यहाँ डीपीएस में पढ़ रहा है, जो मॉडर्न स्कूल में पढ़ रहा है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता था, वो फॉरेन यूनिवर्सिटी में जा कर के पढ़ेगा, क्योंकि उसी के पेरेंट्स अफोर्ड कर पाएंगे। जो गरीब है वो पहले भी सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ता था और आगे भी वहीं पे पढ़ने की क्षमता रखेगा, अनलेस
यू जो सर ने जैसा कहा कि कॉलेजेस के स्टैंडर्ड को रेज करना पड़ेगा आपको, और वहाँ स्टेट को आना पड़ेगा, बड़े लेवल पे रिसीड करने से नहीं चलेगा। सो एक हम लोग देखते थे जनरली जब मोटिवेट करना होता था स्टूडेंट्स को, तो आपको बताया जाता था एग्ज़ाम के पहले आप पढ़ोगे तो इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, यहाँ जाओगे तो वहाँ अच्छा माहौल मिलेगा, आप अच्छा कुछ बन पाओगे। तो इस केस में एक अफोर्डेबिलिटी की बात आ रहा है, दूसरा एस्पिरेशन की बात आ रहा है, तीसरा अदर ऑप्शंस की बात आ रहा है। तो ये सब कई एक स्तर पर जो अब प्रॉब्लम सामने देख रहे हैं, तो उसके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच क्या होना चाहिए? देखिए, होलिस्टिक अप्रोच के लिए हमें स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक देखना पड़ेगा। मेरा ये विश्वास है कि इस देश में केवल 25% बच्चों को अच्छी स्कूल एजुकेशन मिलती है, बाकी 75% के स्कूल कहीं न कहीं विभिन्न प्रकार की कमियों से पीड़ित रहते हैं ना। अगर हमारे पास आज 80% बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही होती तो द कॉग्निटिव कैपिटल ऑफ इंडिया वुड हैव बीन एक्नॉलेज्ड एज मच अबव एवरी अदर नेशन। वेरी ट्रू। पहली बात है, जो बच्चे हमारे अच्छे किसी तरह पढ़कर आते हैं हायर एजुकेशन में, उनमें जो फिगर है वो कहीं कहीं 10 या 11% है। अब दी अप्रोप्रिएट एज उन अच्छे स्कूल्स में भी जो बच्चे एक्चुअली पढ़ना चाहते हैं उनका परसेंटेज और नीचे, उनका नीचे है। अच्छा, दूसरा ये है कि जहाँ तक प्रोफेशनल एजुकेशन का सवाल है, यू हैव नाउ सो मच ऑफ कोचिंग एंड ट्यूशन विच एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड, तो वहाँ पर भी एक डिस्क्रिमिनेशन ज़बरदस्त है। आपने जो बात कही है वो बहुत सही है, आपने भी उसको दोहराया। स्टेट कैन नॉट run away from its responsibility to expand higher education and also to improve higher education in terms of quality. ये दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। मैं ऐसा समझता हूँ ये फॉरेन कैंपस वगैरह की बात है, दिस इज टू डाइवर्ट अटेंशन। इससे उस वर्ग को कोई फायदा नहीं होगा जिसके लिए संविधान में ये प्रॉमिस की गई है कि हम आपको बराबरी का अवसर देंगे, और नॉट द क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ओनली फॉर एक्सेस बट ऑल्सो फॉर सक्सेस। नाउ यू कैन नॉट गिव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस if you put him in a poor school, a poor college, which doesn't have anything worth the name. ये जो चीज़ हो रही है इसकी तरफ उतनी सीरियसली ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितना देना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही, वी आर प्लेइंग विद द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। इन्हीं लोगों में से अच्छे लोगों को आना चाहिए। और अब जैसे 100% मार्क्स की बात जब आती है तो ये बहुत सीरियस एक चीज़ पैदा होती है कि महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, ये तो कहीं नहीं आते, ये तो हमारे को मिलते ही नहीं। अगर ये इनको कहा जाए नंबरों पर ही आप लगे रहिए, मैं अपनी राय ये देता हूँ उन बच्चों को जिनके 95% हैं, और मैं कर चुका हूँ। मुझे एक बार कहा गया कि इसके इतने % नंबर हैं टॉप की, आपका क्या कहना है? मैंने कहा मेरा कहना है पढ़ना थोड़ा कम करो, खेला करो, टीवी देखो, अखबार अच्छा सा एक पढ़ो, म्यूजिक, पेंटिंग, डांस, ड्रामा में इंटरेस्ट लो। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत पेरेंट्स ने मुझे इस बात के लिए कहा कि आपने ठीक कहा, हम भी ये चाहते हैं। तो ये जो नंबरों की दौड़ है, इस दौड़ को कम करना चाहिए, अन्यथा बच्चों के व्यक्तित्व पर असर पड़ता है। विभिन्न क्षेत्रों में जो उनकी प्रतिभा है वो भी कुंठित हो रही है। और इस सबको ध्यान में रखने के लिए स्कूल शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन तक गवर्नमेंट को फंड्स देने चाहिए। दिस इज इन्वेस्टमेंट विच विल पे वेरी रिच डिविडेंड्स। ये सरकार को समझकर आगे बढ़ना होगा। कॉलेज एडमिशन के लिए बहुत सारे पेरेंट्स जो जानकार रहे दूर दराज से भी, उन्होंने कई बार मुझसे ये पूछा कि बच्चे को क्या पढ़ाना चाहिए, कहाँ पढ़ाना चाहिए। मैंने कहा सबसे पहले बच्चे के साथ बैठो, बैठ करके ये बात कीजिए कि भाई क्या करना चाहता है वो। केवल किसी कॉलेज में घुस जाना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। और कॉलेज एजुकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि वहाँ से डिग्री मिलेगी, डिग्री तो ओपन स्कूल से भी मिल जाएगी। वहाँ इसलिए जाना चाहिए कि 3 साल में आपकी पर्सनालिटी में क्या इजाफा हो रहा है, और इसलिए उस कॉलेज को चुनिए जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ पर्सनालिटी को ब्लॉसम करने के ज़्यादा हों। SRCC या स्टीफन से अगर बेहतर कहीं पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ जाइए। और आज के ज़माने में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो मैं कह सकता हूँ कि सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट सिस्टम है, और यहाँ पे अब एक समय था, लेगेसी चल रही है कि भाई SRCC एंड ऑफ कोर्स अब थोड़े से कुछ फ़ायदे भी हैं। जैसे SRCC इज़ द ओनली कॉलेज जिसका हर क्लासरूम एयर कंडीशनड है, हर टीचर को कॉलेज ने लैपटॉप दिया हुआ है। दीज आर सर्टन फैसिलिटीज़ विच कैन बी गिवन टू एनी अदर कॉलेज ऑल्सो। लेकिन जहाँ तक टीचिंग और फैकल्टी का सवाल है, अपॉर्चुनिटीज़ का सवाल है, देयर आर इन नंबर ऑफ कॉलेजेस विच आर डूइंग वेरी वेल। फॉर एग्जाम्पल दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज, अभी कुछ दिनों पहले तक 10 साल 15 साल पहले माना जाता था कि बड़ा बदमाश कॉलेज, और यू विल बी सरप्राइज टू नो कि पिछले 10 वर्षों में सबसे ज़्यादा इंटर कॉलेज प्राइजेस इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज जीतता है। बड़ी बात है।
तो इसलिए कॉलेज का जो रेपुटेशन और वो है कॉन्सेप्ट, वो एक लेगेसी है, वो धीरे धीरे उसमें चेंजेस आएंगे। एक चीज़ और हम लोग देखते हैं, मार्क्स को ही ख़त्म करने के लिए जो सिस्टम लागू किया जा रहा है, ग्रेड सिस्टम, तो ग्रेड सिस्टम के आने से स्कूल एजुकेशन में परिवर्तन और उसके बाद कॉलेज लेवल पर जो शिफ्ट होगा, तो उसको आप लोग किस तरह से देखते हैं एक एजुकेशनिस्ट के तौर पर और एक विजनरी के तौर पे किस तरह से फैसले प्रोफेसर राजपूत से जानना चाहेंगे? देखिए, दुनिया भर में शिक्षाविद ये बात मानते हैं कि नंबर का जो सिस्टम था, मार्किंग सिस्टम, उससे ग्रेडिंग सिस्टम बेटर है। मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं अगर कुछ कापियाँ आज देखूँ और 10 कापियाँ आज देखूँ, नंबर दूँ और 6 महीने बाद फिर देखूँ, तो मेरे नंबर बदल जाएंगे, क्योंकि ये ह्यूमन लेवल की लिमिटेशन है, व्यक्तिगत लिमिटेशन है। इसलिए उसको ग्रेड में देने में शायद ग्रेड्स अगर मैं आज दूँ तो 6 महीने बाद भी करीब मैं वहीं पर उसको रखूँगा। और ये जो एक दौड़ है बच्चों के अंदर कि मेरे 93.6% है, उसके 93.8% है, तो वो मुझसे अच्छा है, इससे भी बच्चों को निजात मिलती है। और लेकिन जो हमारे यहाँ कमी रही है वो है कि हमने बिना किसी तैयारी के ग्रेडिंग शुरू कर दी। ग्रेडिंग शुरू करने का मतलब है कि लगातार अध्यापक को बच्चे का इवोल्यूशन करना है, कंटिन्यूस इवोल्यूशन करना है, अंत में उसका कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन होना है। लेकिन अध्यापक के पास समय होना चाहिए, उसके पास उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें नहीं है हमारे स्कूलों में। सरकारी स्कूलों में, जैसा मैंने कहा, विश्वविद्यालय में अध्यापक ही नहीं। स्कूलों में यही हाल है कि आपने किसी को गेस्ट लेक्चर बुला लिया, किसी तरह काम कराया, वो आपके साथ उस तन्मयता से काम कर ही नहीं सकता। या अगर आपने वो पार्ट टाइम किसी को लगाया है और ही इज़ नॉट श्योर अबाउट हिज सर्विसेज बीइंग कंटिन्यू, देन अगेन दिस थिंग्स विल नॉट हैपन। हमारे सरकारी स्कूलों में एक अध्यापक के पास कहीं कहीं 100 बच्चे हो सकते हैं, 80 हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं। उससे अपेक्षा करना है कि वो ग्रेडिंग का सारा काम करेगा, ये सच्चाई से आंख बंद करना है। और यही मेरा एक शिकायत है कि इसको ठीक किया जाना चाहिए, तभी ग्रेडिंग का फ़ायदा होगा। हाँ, ये ठीक है, अभी पेरेंट्स भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं, थोड़ा स्ट्रेस स्ट्रेन कम हुआ है, लेकिन 2 साल बाद इसका अध्ययन करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी कि जो लगातार टेस्ट होते रहते हैं बच्चों को, उससे जो स्ट्रेस होता है वो, और एनुअल एग्जामिनेशन में होता था, उसमें ज़्यादा कौन सा है और कम कौन सा है, बिना इसके आप इसको लागू करते रहें और न देखें तो फिर वो ऐसी स्थिति पैदा होगी जैसी CBSE में हुई कि लगातार वो बढ़ाते गए और अब यहाँ पहुँच गए। उन्होंने एंटिसिपेट नहीं सोच की कमी, मतलब एक छोटा सा उदाहरण दे करके कि कैसे सिस्टम में सोच ही नहीं है। हम हमेशा एक वैल्यू एजुकेशन की बात करते रहे कि मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है, उसका जो इंडिविजुअलाइजेशन हो रहा है, दिस कैन लीड टू ट्रबल। और अभी पिछले वर्षों में आप 3-4 साल का उठाकर देखेंगे, यू विल फाइंड कि मोस्टली दशहरे के ठीक बाद अगले दिन एग्जाम हाफ ईयरली शुरू हो रहा है, होली के ठीक अगले दिन एनुअल एग्जाम शुरू हो रहा है। सो व्हाट आर यू अप टू कि भाई जो भी कम्युनिटी फेस्टिवल्स हैं उसमें बच्चा पार्टिसिपेट ना करे, आप एग्जाम की तैयारी वो तो तब आएगा जब एजुकेशन, क्या सोच है। एजुकेशन भी एक समय आके फैक्ट्स तक लिमिट हो गया है कि भाई हमें बस शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के कारण फैक्ट्स तक केवल याद करने तक सीमित हो गया है। अभी जैसे अभी तक हम लोग कम से कम हायर एजुकेशन में वी वेयर कंसर्न्ड अबाउट एजुकेशन, लेकिन अभी जो ये चल रहा है सेमेस्टर के ऊपर जोर, हम लोग वापस स्कूल वाले सिस्टम का यहाँ पर रेप्लिका तैयार कर रहे हैं, जहाँ एजुकेशन सिस्टम विल बी रिप्लेस्ड बाय एन एग्जामिनेशन सिस्टम। क्या पूरा कंसंट्रेशन इस पे है कि एग्जामिनेशन कराना है, रिजल्ट निकालना है, अगला करना है, एग्जामिनेशन कराना है। अब जैसे हमें 1 साल के बाद एग्ज़ाम देना होता था, तो कभी उठा करके कोई टीचर ने बताया कि देखो ये क्लासिक पढ़ना चाहिए, पढ़ ले। अभी अगर 3 महीने बाद एग्ज़ाम है तो किसको फुर्सत है, वो तो कोशिश यही हो गई भाई एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ना, बताइए कौन सा पढ़े। उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि एडमिशन को लेकर है, एक तरफ तो जनरल सीट्स भर जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो SC ST OBC के सीट्स हैं वो रिमेन्स वैकेंट्स। What are the reason behind this? Like through media report we have come to know that Shahid Bhagat Singh College has managed to admit only about 69 OBC students against 255 seats, while Daulat Ram College filled 169 out of 290 OBC seats. Motilal Nehru only 80 admission taken out of 260 seats. Ramlal Anand College has taken only 42 students. The given strength is 159. So how do
you see these things? देखिए, यहाँ पर भी स्थिति वही है। जब तक आपके स्कूल गांव में उन बस्तियों में जहाँ ओबीसी का कंसंट्रेशन है ठीक से नहीं चलेंगे, तब तक स्थिति बनी रहेगी। सरकार ने उस स्थिति को बिना सुधारे घोषणा कर दी कि हमने 27% सीटें रिजर्व कर दी हैं। उसमें भी लेकिन कन्फ्यूजन है। हाँ, कन्फ्यूजन क्रिएट किया हुआ है कि भाई ये जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए या शेड्यूल ट्राइब के लिए है कि आपने स्लिप दे दिया और कितने भी मार्क्स हैं उससे कॉलेजेस को कोई कंसर्न नहीं है, एडमिशन दे दीजिए। ओबीसी में यू हैव लेफ्ट इट ओपन। कॉलेज जो है 5% कंसेशन दे रहा है कि 10% दे रहा है, ये कॉलेज का प्रेरोगेटिव रहेगा। सो दैट इज अनदर हाँ, उससे भी दिक्कत है प्रॉब्लम। या तो ये कि भाई ये फिक्स्ड हैं, ये किसी जाइए यूनिवर्सिटी में आप रजिस्टर कराइए और गो एंड टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज, देन प्रोबेबली। लेकिन वहाँ पे फिर दूसरा क्वेश्चन ये आएगा, क्या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के साथ ओबीसी को इक्वेट किया जाना चाहिए? कर सकते हैं, लेकिन इस पर निर्णय होने चाहिए। ये जो इस पर बात है बातचीत ना, होनी इस पर चाहिए। बातचीत होनी चाहिए, निर्णय होने चाहिए। जो अभी जो स्थिति है, तो वो सीट्स हमेशा खाली रह जाते हैं, उसके दूसरे थ्रू या कंसेशन के थ्रू फिलअप किए जाते हैं। क्या स्थिति है? कॉलेजेस कोशिश करते हैं, जैसे लास्ट ईयर हमने किया था कि 10% तक अनाउंस करने के बाद फिर थोड़ा सा हुआ कि 2-3% कम भी है तो चलो लिया, क्योंकि उस सीट के अगेंस्ट हम जनरल एडमिशन नहीं कर सकते। जो सीट्स रिजर्व्ड हैं ओबीसी के लिए, उसके अगेंस्ट हम जनरल कैंडिडेट्स को एडमिट नहीं कर सकते। तो इसलिए अब खाली रह जाए, इससे अच्छा है कि थोड़ा और कंसेशन दे के कर दो। तो लेकिन इसके ऊपर अगर एक कंसेंसस होकर के यूनिफॉर्मिटी आ जाए तो ज़्यादा वो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब ऐसा है कि हम उसको सीट्स को फिलअप करें, इस पर ज़्यादा फोकस है। इस पर भी थोड़ा बहुत नवाचार होना चाहिए। सम इनोवेशन शुड टेक प्लेस, दे शुड ट्राई। लेकिन एक बात और भी है कि कॉलेजेस में एक एलिटिज्म है कहीं कहीं कि भाई नहीं, इससे कम में लेंगे तो वो कैसे वो बच्चा कोप नहीं कर पाएगा एंड ऑल दैट। अगेन जो मैं बहुत सहमत नहीं हूँ उससे कि 12 के मार्क्स से बहुत हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। कई चीजें हो सकती हैं। एक राजगढ़ से दर्शक हैं, वो कुछ पूछना चाहते हैं, उनका पहले हम लोग प्रश्न लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए। जी नमस्कार। जी गोपाल जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। जी प्रश्न पूछिए। जी सर, मैं ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ जी कि हेलो। जी सुन रहे हैं, आप अपना प्रश्न पूछिए। कि जेआरएफ के लिए, जी सर मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जेआरएफ के लिए क्या व्यवस्था है सर? जेआरएफ जो होती है सर, जेआरएफ हाँ जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसमें कौन बैठ सकता है और उसकी पूरे हिंदुस्तान में कितने लोग पास होते हैं एक साल में, ये पूछना चाह रहा हूँ। वो हर साल ये संबंधित नहीं, लेकिन फिर भी इनकी उत्सुकता, जब यहाँ का स्थिति को देख रहे हैं तो बाहर भी जाने का सोच रहे हैं। जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए इम्तिहान यूजीसी कंडक्ट कराती है और वो हर विषय में अभी नहीं है, लेकिन जितने विषयों में है उनके वो उसको एडवर्टाइज किया जाता है अखबारों में, तो उसको आप देख लेंगे। और नंबर, कितने नंबर हैं वो डिपेंड करता है कितने लोगों ने अप्लाई किया, और लगभग हर डिसिप्लिन में एक पर्टिकुलर परसेंटेज फिक्स किया जाता है जितने लोग क्वालिफाई करते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे रिजर्वेशन के ऊपर, तो रिजर्वेशन वाला कोर्ट जो सीट्स रहते हैं उसको किसी तरह भरने की प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी खाली चले जाते हैं। वही लेकिन कुछ कॉलेजेस को, जैसे आपने कहा कि जो नीचे के नंबर वाले बच्चे उनको लेना चाहिए और उनके लिए थोड़ी अलग से व्यवस्था करनी चाहिए, जो नहीं कर रहे हैं कुछ कॉलेज। दुनिया भर में ये बात की जाती है, जब किसी वर्ग को हमें विशेष रूप से कुछ सिखाना होता है तो हम उसको रेमेडियल टीचिंग देते हैं। आईआईटीज में ऐसा होता है, आईआईटीज ने SC/ST के लिए किया हुआ है। वो कुछ कॉलेज प्रयोग करके देखें और 1-2 साल में उन्हें पता लग जाएगा कि वो कितने नीचे तक जा सकते हैं, कितने उसके बाद नहीं जा सकते। तो ये हर चीज़ों को देखिए, एक यूजीसी की एक फैसिलिटी है जिसको बहुत कम कॉलेजेस यूटिलाइज कर पा रहे हैं, रेमेडियल कोर्सेज की। तो अगर बहुत नीचे मार्क्स पे भी आप किसी को एडमिशन दे रहे हैं तो रेमेडियल कोर्सेज दे करके उसको ला सकते हैं उस लेवल तक। तो इसलिए कॉलेजेस कैन यूटिलाइज दैट फैसिलिटी। सर, एक जो इससे संबंधित लगता है, जो आजकल कॉलेज में सेमेस्टर सिस्टम लाया गया है, और जो आपने कहा कि
प्रोफेसर्स की कमी है, स्कूल्स में शिक्षकों की कमी है। तो ये सेमेस्टर सिस्टम लाने के बाद ये जो क्वालिटी एजुकेशन और नंबर ऑफ क्लास का जो है कि नंबर ऑफ क्लास तो बढ़ जाएंगे, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगा या नहीं, इसका क्या गारंटी है? शिक्षक तैयार होके जाएंगे, नहीं जा पाएंगे? एक क्या सब अभी जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले साल का दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एक बड़ी विडंबना है अमरेंद्र जी। विडंबना ये है कि ऑन द वन हैंड वी प्रिज्यूम that we are talking about higher education, we are talking about people who are really concerned with higher education, who actually want to do something there, and on the other hand हम ये मान कर चल रहे हैं कि people are shirker, people don't come to classes, people don't teach। तो ये दोनों, ये जो confusion पर चर्चा करेंगे हम लोग। एक और दर्शक हैं, दिल्ली से हैं, अजय जी। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी, मेरे को ये पूछना था आप सब लोगों से जी कि जो ये ग्रेडिंग सिस्टम अब नया जो हमारे सीबीएसई ने स्टार्ट किया, बोलिए जी, पूछिए। तो क्या आप नहीं समझते हैं कि इसका और भी मतलब अभी आज नहीं अगर असर पड़ेगा तो लेकिन आगे जाकर असर पड़ेगा? इसका अभी मतलब आज एट प्रेजेंट तो सबको ये अच्छा लग रहा है, पेरेंट्स को भी लग रहा है, सबको लग रहा है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि इसका असर एक मतलब जैसे जो सिस्टम चल रहा था पहले, वो सिस्टम का असर हमें आज पता लग रहा है कि हाँ हो सकता है उसमें बहुत सारी कमियां थी। मुझे लग रहा है इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। ये जो नया सीबीएसई ने सीसीई पैटर्न जो नया स्टार्ट किया है, इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। अभी रिसेंटली जो 10th का रिजल्ट आया तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी देख रहा हूँ, मेरा बच्चे ने भी दिया था, तो कि कोई फेल ही नहीं हुआ। चलो ठीक है, फेल नहीं हुआ, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये है कि जब जो मतलब जिसने 90 का ब्रैकेट लिया है, सपोज मेरे बच्चे ने 70 ही लिया है, जब उसको कंपेयर आप करते हैं ना तो आप ऐसा लगता है मेरा बच्चा भी ठीक ही है, चलो अच्छा कर रहा है वो भी। मतलब ये एज ए पेरेंट मैं बता रहा हूँ। तो आप इसके बारे में क्या मतलब आप क्या राय है? बस बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। दो सिस्टम को कंपैरिजन कर रहे हैं और हम लोग को पता चलता है जब सिस्टम के कुछ दिन हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, लाइक 5 साल 10 साल बाद, उसके बाद कमियां पता चलती है। पहले ही कमियां जानना चाहते हैं, तो इस पर नहीं, लेकिन इसमें उसका तरीका यही है, जो आपकी जो आशंकाएं हैं वो आपने पूरी तरह तो नहीं बताई, लेकिन हाँ इसको जरा देखिए 2-3 साल बाद जब चीज़ें सामने आएंगी तब हमें पता लगेगा। जैसे जब 12वें में ग्रेडिंग होगी उसके बाद एडमिशन्स में समस्याएं पैदा होंगी और तब ये देखना पड़ेगा कि उन समस्याओं के समाधान जो दिए गए हैं वे कितने हद तक स्वीकार्य हैं और कितना बच्चों में वो क्या प्रतिक्रियाएं पैदा करते हैं, पेरेंट्स में क्या करते हैं। अभी सभी लोग प्रसन्न हैं, सरकार भी प्रसन्न है और शिक्षाविद मानते हैं कि दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं उन सभी में ग्रेडिंग प्रणाली ही लागू की गई है और बड़े अनुभव के आधार पर की गई है। मैंने ये 2 बातें कही थी कि हाँ उस प्रणाली के लिए कुछ आवश्यकताएं होती हैं, वे आवश्यकताओं की पूर्ति अगर हो जाएगी तो आशंकाएं ये निर्मूल साबित होंगी। अगर उन आशंकाओं की पूर्ति नहीं होगी, उन कमियों की पूर्ति नहीं होगी तो निश्चित रूप से नई समस्याएं पैदा हो सकती। तो ये तो ठीक है, एक मानना सही है, लेकिन क्या 2-3 साल बाद हम 3 साल हमको इंतजार करना पड़ेगा? उसके बाद उसके पहले कुछ ऐसा मैकेनिज्म नहीं क्रिएट कर सकते हैं ताकि सर ने जो कहा कि टीचर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इसमें जो एवेल्युएशन हो रहा है इसके कई कंपोनेंट्स हैं। एजुकेशनल जो एकेडमिक कंपोनेंट है, सोशल कंपोनेंट है, दूसरा एक थोड़ा सा कम्युनिटेरियन अप्रोच लाने की कोशिश की गई है। तो वो सारे आयाम का इवैल्यूएशन अगर टीचर कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे कर सकता है तो ये बहुत ही लाजवाब सिस्टम होगा। क्योंकि मैं बार बार कहता रहा हूँ अपने जो भी पेरेंट्स हैं उनको भी, और अदरवाइज़ यहाँ पे भी मैंने कहा था जब करियर के बारे में हम बात कर रहे थे, कि बच्चे के एप्टीट्यूड को समझना, उसके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा, हर बच्चे में प्रतिभा है, उसको निकालने का समय नहीं मिलता था पुराने सिस्टम में। अभी आप देखिए कि बच्चा जो है वो अभी मेरा बेटा 10th में है, नाउ ही हैज़ बिकम अ प्लेराइट, वो लिख रहा है। क्यों भाई? क्योंकि उसके ऊपर इवैल्यूएशन हो रहा है। पहले उसको अगर लिखता तो हम ही डांट देते, यही सब करते रहोगे, पढ़ोगे नहीं। अपॉर्चुनिटी भी सामने अब है कि उसके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं वो निकलेंगी, और उसमें वो जो सर ने कहा कि अगर आप केवल मार्क्स पे कंसंट्रेट करते
तो धोनी कहाँ से निकलता और तेंदुलकर कहाँ से निकलता? केवल यही नहीं, देयर आर एन नंबर ऑफ फील्ड्स जहाँ स्पेशलिस्ट्स की ज़रूरत है, और वो नहीं निकल रहा था आपके पुराने सिस्टम से। नए सिस्टम में वो उसकी संभावनाएं बनती, लेकिन टीचर्स को सही ये बात तो ठीक है, नया सिस्टम होना चाहिए, लेकिन जो दर्शक का जो कंसर्न था, हम जहाँ तक समझ रहे हैं, उनका कहना है कि अगर 5 साल के बाद फिर इस सिस्टम में कमियां हो जाए, हम कहें कि नहीं ये ठीक नहीं था, अब एक और सिस्टम लाओ। नहीं, इसी में सुधार परिवर्तन हो सकता है, आवश्यक नहीं है कि नया आए, बहुत लेकिन परिवर्तन तो होता होने की जरूरत नहीं है, बहुत पेसिमिस्ट भी होने की जरूरत नहीं है। एक टेस्ट पहले से हम लोग टेस्ट करके या इस तरह से चले कि नहीं ये सिस्टम इवॉल्व होगा, ए काइंड ऑफ इवोल्यूशन, नॉट अ रिप्लेसमेंट। अगर इसको जिस तरह से सोचा गया है, जिस तरह से कंसीव किया गया है, उस तरह से अगर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है तो मुझे इसमें बहुत संभावनाएं दिखती हैं। अच्छा, चलिए तो अच्छी बात है, शुरुआत है। लेकिन एक बात मैं इनको कहना चाहता हूँ, जो प्रश्न पूछा गया उससे निकलता है। एक और नागपुर यूनिवर्सिटी उस पर चर्चा करेंगे, एक नागपुर यूनिवर्सिटी से दर्शक हैं। जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए। जी, प्रश्न पूछिए। This is Dr. Bansod. जी, This is Dr. Umesh Bansod from Nagpur University, Academic स्वागत Staff है। College. Hello. जी, आप प्रश्न पूछिए, सुन रहे हैं। So I would like to ask Professor Mani Bhushan. जी, Hello. Yes, listening. आप अपना टीवी का वॉल्यूम थोड़ा We कम are कर दें। talking about foreign universities. Yes. May I ask you for whom these foreign universities are being invited in India, Yeah, I have already given my answer. See, most and at of, what cost the poor students will get the education through such universities? yeah, that is And how what, will the government control these universities? yeah, And I would also ask to Professor Mani Bhushan, what does it mean whether Indian universities are not worthy to impart such quality education? And once again, I have some queries from where the professors will be imported to such universities, whether from outside the India or from within India. Right. And if the professors are within India, why not Indian universities are continuing for quality education? yeah, I share your And concern. what about the reservation policies for SCs and STs? I share your concerns, and I had very clearly put my position earlier that foreign universities are going to cater to the needs of the people who can afford higher education today, either in central universities like Delhi, JNU, or even who can go abroad and get educated. So if they are coming here, they are not coming for the poorer section for sure. And so far the faculty and prospectus and syllabi etc. is concerned, I'm damn sure no foreign university is going to bring people from abroad. They would hire people from India itself, and but this is going to be another very important factor which I had not mentioned earlier, but today, I answering your question, I can say this for sure, that most of the, or if not most, many of the good teachers from government colleges and universities would be hired by the foreign universities for their campuses, and that would be another blow to the state-run institutions. So this is concern of many people, like the existing number of colleges we have, where there are lack of professors, lack of quality education, etc. So why not we put focus first to get the things in order, and then we'll think of these things, opening expansion of the colleges. Exactly. Very true. Quality improvement of the existing institution should be our first priority. Equally important is to open new institutions, because the upthrust from school education has come up in a big way. Numbers have increased enormously, and let me tell you, nobody from outside will come and solve our problems. We have another They question. have to We have solve another by question ourselves. from. I'm sorry to interrupt you, sir. We have another question from the Nagpur University. So welcome you, sir. Please ask your question. Yes, I'm Dr. Mrs. Ujjwala Sadafar from Academic Staff College, Nagpur. Okay, welcome. I would like to ask Professor Rajput, Yeah. sir, don't you think that grading system will adversely affect motivation among students? Because nowadays grading system is in vogue.
will it not adversely affect the motivation among high scorers? The So motivation of this question has been raised by many times, and I would say no. It will not affect the motivation of anybody. Children must know and learn that if they have scored 94% marks, the one who has scored 93% is not inferior to them. So this sense of superiority and inferiority will to some extent get a bit covered up in the grading process, and then parents would also not be insisting that no, you must get 94% because my neighbor has got 95%. That type of thing we have to curb. One thing would still be there, and that would be a healthy competition. If you are in grade, say, B+, try to go for A. That much is all right. But to be very specific, the problem here is these numbers have caused so much of damage in the past that alternatives had to be searched. And let me also say, grading has been introduced in CBSE schools fully, but it has not been proposed for the first time. For several years, for at least 3 decades I know, NCERT has been working on this. And if you recall, CBSE has been giving grades even in earlier years along with marks. The grades were given, and slowly they were preparing people. But the difficulty remains that we did not prepare all the teachers and every whole system. We did not train them properly and introduced it. So that may cause aberrations, but grading is acceptable in most of the countries which are educationally advanced. It has taken a good shape, and it is creating a healthy competition. You shift from grade to grade and not from percentage to percentage. There's So, another yeah, there is another question from Nagpur University. Welcome, ma'am. Please ask your question. जी आप अपना प्रश्न पूछिए. Academic Staff College. I'm from Dr. Shraddha Gawande, Academic Staff College, Nagpur University. Okay, fine. मेरा सवाल ये है आपसे कि उच्च शिक्षा में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं अभी, उसमें हमारी जो महंगाई बढ़ रही है, शिक्षा महंगी होती जा रही है, जो आम इंसान के बस में नहीं रह गई है. सारे लोग सीबीएसई में अपने बच्चों को नहीं डाल सकते. आज भी वो प्राइमरी स्कूल या कॉर्पोरेशन स्कूल में पढ़ रहे हैं. तो ये ग्रेडिंग सिस्टम उनके लिए कहाँ तक कारगर रहेगा? और उसके बाद अगर ये ग्रेडिंग सिस्टम से एम्प्लॉयमेंट रेट कितना जनरेट होगा, आगे आने वाले 8 से 10 साल में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे, इसका कुछ आपने इकोनॉमिकली एनालिसिस किया होगा तो प्लीज बतलाइए. या अभी इसी वाले पॉइंट पे बोलते बोलते बीच में आपका कॉल आ गया था कि इससे पहला जो प्रश्न था वो ये था कि जो हाई स्कोरर्स थे उनके मोटिवेशन का क्या होगा. उस पर मैं ये बोलना चाहता था कि हाई स्कोरर्स जो थे वो एक वन डायमेंशनल पर्सनालिटी के रूप में इमर्ज कर रहे थे, विच इज़ नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, नॉट इवन गुड फॉर हिम और हर. ग्रेडिंग सिस्टम अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है तो वहाँ पर एक कंपोजिट पर्सनालिटी डेवलप होगी जिसके कई डिमेंशंस पर्सनालिटी के हैं, हिडन टैलेंट है, वो सब निकल करके सामने आ सकेगा. तो वो ज़्यादा बेहतर तरीका इवेलुएट करने का है कि कोई किसी में कितना इम्प्रूवमेंट एजुकेशन ला पा रहा है. आपका दूसरा प्रश्न बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है कि गवर्नमेंट स्कूल्स और म्यूनिसिपल स्कूल्स में ये सिस्टम कितना कारगर हो पाएगा. वो डिपेंड करता है कि एजुकेशन के प्रति सरकारें कितनी सजग हैं और कितनी कमिटेड हैं. उस पर डिपेंड करेगा कि वो टीचर्स की ट्रेनिंग का प्रोसेस. आप एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में हैं तो इस तरह के स्टाफ कॉलेजेस अगर स्कूल टीचर्स के लिए भी खोले जा सकें जहां उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो सके, तो आई थिंक दिस सिस्टम कैन वर्क. एम्प्लॉयमेंट की जहां तक बात है, जो पुराना सिस्टम था वो किसी भी तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहा था. इस वाले सिस्टम में आप शायद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर पाएंगे. सर, इन सब के बीच में एक नया कॉन्सेप्ट आया है वोकेशनल कॉलेजेस का, कम्युनिटी कॉलेजेस. या दैट इज़ व्हाट आई वाज पॉइंटिंग टू, कि ये जो अंदर की प्रतिभाएं हैं वो जब निकलती हैं तो उसको कैटर करने के लिए आपके पास इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए. हर कोई एसआरसीसी में जो 100% वाला गया है, आर यू वेरी श्योर कि उसका कॉमर्स में एप्टीट्यूड है? आई एम नॉट 100% श्योर. दैट इज ट्रू. और जब हम लोग बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट का या कैपेसिटी बिल्डिंग का, तो हाउ फर्स्टली वी विल evaluate the capacity and skill of, and what sort of the training need to be given to the students? For that there are something kind of arrangements.
ऐसा है, गांधी जी ने इस देश की आवश्यकताओं को समझा था और स्वतंत्रता की लड़ाई के पहले जब लड़ाई चल रही थी, जब पता नहीं था कि कब हम आज़ाद होंगे, तब उन्होंने एक हमें कॉन्सेप्ट दिया। इस पर चर्चा करेंगे। उसका व्यवहारिक रूप भी हमारे सामने रखें। नागपुर यूनिवर्सिटी से एक और दर्शक हैं जी, उनका हम प्रश्न लेते हैं। आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए। जी आप प्रश्न पूछिए। लगता है हमसे संपर्क टूट गया है। हम लोग चर्चा कर रहे थे गांधी जी के। हाँ, तो मेरा ये कहना था कि जो बेसिक एजुकेशन की व्यवस्था थी उसमें ये था कि हाथ से काम करना सीखे, कोई कोई कौशल सीखे। हमने तो उसको धीरे से भुला दिया, कहा नहीं, लेकिन नहीं भुला नहीं दिया, हमने उसको डिग्रेड कर दिया। हाँ, हमने उसे कि भाई नीचे ये कर जो दिया। आईटीआई में जो बच्चा पढ़ रहा है वो निचले लेवल का हो गया, इंजीनियरिंग में जो पढ़ रहा है वो उचले लेवल का हो गया। लेकिन आप देखिए इस समय ये बात कही जा रही है कि दुनिया में ऐसे देश कितने हैं जहाँ पर कौशल सिखाने पर शिक्षा में सबसे ज़्यादा जोर है। हमारे देश में जो प्रतिशत करीब 17-18 साल तक बच्चे को कौशल सीखने वाली स्थिति जो है वो करीब 8 से 10% बच्चों में आती है। चाइना में ये 22-23% है, कोरिया में 90% है। वो चाहे वकील बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन हाथ से काम करने का कुछ न कुछ वो 17-18 साल तक सीख लेता है। इसलिए अगर उसको मान लीजिए जॉब नहीं मिला या कुछ और समस्या हुई तो वो दूसरे पर निर्भर नहीं होता है, कुछ कुछ प्रोड्यूस करता है, कुछ कुछ बनाता है, करता है। इस चीज़ को शिक्षा में लाना बहुत आवश्यक है। हमने इसको कई बार अपनी नीतियों में तो कहा है, लेकिन हम कर नहीं पाए। कोठारी कमीशन में ये कहा गया था सन 68 की नीति में कि हम अगले 10 वर्षों में 25% सेकेंडरी स्कूलों में वोकेशनल में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन हम कर नहीं पाए। आज भी 4-5% स्कूल ही सेकेंडरी स्टेज पर वोकेशनल में कन्वर्ट हो पाए हैं। अब सरकार इसकी ओर ध्यान दे रही है, उन्होंने इसके लिए समितियां गठित की हैं, सब किया हुआ है। ये बहुत आवश्यक है कि हम वहाँ तक पहुँचे। और एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि आपके अंदर जो भी एबिलिटी है उस एबिलिटी के हिसाब से अपने फील्ड में आप जितना कर सकें करिए। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एक लड़का इंजीनियरिंग, उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत प्रेशराइज किया इंजीनियरिंग में जाने के लिए, वो नहीं क्वालिफाई कर पाया। बहुत दुखी परिवार वालों ने उसको क्या नकारा है, दिस दैट। उसने कंप्यूटर में उसका इंटरेस्ट था, उसने अपने आप घर में ठोक ठाक करके कुछ कुछ शुरू किया और आज के दिन उसका टर्नओवर कई 100 करोड़ का है और कई इंजीनियर्स को वो अपने यहाँ एम्प्लॉय रखता है। जस्ट बिकॉज ही उसके अंदर जो एप्टीट्यूड था उसको उसने प्रूव किया, उसने उसको डेवलप किया और आज के दिन कोई भी कंप्यूटर आप उसके पास ले जाइए यूं ठीक करेगा। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। राहुल जी हैं मध्य प्रदेश से। जी राहुल जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए। जी आप प्रश्न पूछिए। जी सुन रहे हैं, प्रश्न पूछिए। कुछ प्रॉब्लम है तो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट लेने के वजह वो एम्प्लॉयमेंट देना शुरू कर दिया और इंजीनियरिंग, तो इट्स बिकॉज ऑफ द एजुकेशन को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से कभी भी अपने आप को हटाना नहीं चाहिए। ये मेरा मानना तो बहुत ज़बरदस्त है इस पे। एजुकेशन में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़। नागपुर यूनिवर्सिटी से दर्शक हैं। जी आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए। जी प्रश्न पूछिए। जी हेलो जी जी सुन रहे हैं, आप प्रश्न पूछिए। हेलो जी हाँ नमस्ते सर, मैं यहाँ नागपुर से हूँ और एकेडमिक स्टाफ कॉलेज से ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए आई हूँ। गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है मेरा, पूरा ट्राइबल एरिया है। वहाँ एजुकेशन के बारे में कोई सतर्कता नहीं है। जो नए पॉलिसी चेंज हो रहे हैं हायर एजुकेशन के बारे में, तो गढ़चिरौली जिला यानी जैसे ट्राइबल एरिया को प्रवाह में लाने के लिए कोई पॉलिसी है क्या सर, यही पूछना था। थैंक यू। ट्राइबल एरिया में एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को ले जाने के लिए कोई स्पेशल पॉलिसी या स्पेशल प्रोग्राम्स वगैरह इस तरह से कुछ हैं सरकार के स्तर पे? हायर एजुकेशन के मामले में तो नहीं है। स्कूल्स को ले जाने तक की बात तो होती रही है, लेकिन कॉलेजेस के मामले में अभी इग्नू ने एक स्टेप लिया है कम्युनिटी कॉलेज करके। तो अगर वहाँ पे आप या कोई और इंटरेस्टेड हो तो इग्नू के साथ मिल करके कम्युनिटी कॉलेज इस्टेब्लिश किया जा सकता है, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं
दे कैन बी अप्रोच्ड, और वहाँ पे देर आर पीपल जो वहाँ जाकर काम करना उनको बहुत अच्छा लगेगा. तो ऑल दैट इज़ रिक्वायर्ड इज़ द विल टू डू समथिंग देयर. वैसे राज्य सरकार ने इस दिशा में ये काम किया है कि देखिए SC/ST के लिए जो सामान्य सुविधाएं हैं वे ट्राइबल एरियाज़ पे लागू होती हैं. वहाँ पर स्कूल प्राथमिकता से खोले जाएं. इस पर भी राज्य सरकारें हमेशा यही कहती हैं कि हम ऐसा प्राथमिकता के आधार पर कर रहे हैं. सरकारी तौर पर जो कॉलेजेस खोलने की नीतियाँ हैं वे अधिकांश राज्यों में ऐसी ही हैं कि इन इलाकों में अधिक से अधिक कॉलेज खोले जाएँ, या वहाँ अगर कोई और खोलना चाहे तो उसे प्रोत्साहन दिया जाए. व्यवहारिक रूप में ये कितना हो पाता है ये अलग चीज़ है. गढ़चिरौली और चंदपुर के आसपास कॉलेजेस तो हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कितने सरकारी कॉलेजेस हैं. हाँ, अगर वहाँ से कुछ लोगों को गाइड करें और सरकार पर दबाव डालें तो कोई भी सरकार मना नहीं कर पाएगी कि हम ट्राइबल एरिया में कॉलेज नहीं खोलेंगे. निश्चित रूप से उन्हें उसको स्वीकार करना पड़ेगा और वहाँ कॉलेजेस की व्यवस्था करनी पड़ेगी. अन्यथा जो सुविधाएं सामान्य रूप से हर जगह मिलती हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, वे ट्राइबल एरियाज़ के लोगों के लिए भी दी गई हैं. सर, आप तो उस इलाके में गए हैं, आपका लेख पढ़ते रहते हैं, तो इंडिविजुअल स्तर पर भी लोग कुछ काम किए हैं जो और काफ़ी अच्छा रहा है. तो उसको इंडिविजुअल लेवल पर कोई अगर करना चाहे एजुकेशन की दिशा में तो कैसे पहल करे और किस तरह से उसे इस्टेब्लिश करे, कुछ अब अनुभव? देखिए, इस समय तो ये कहा जा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बड़ी ज़रूरत है. चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, सरकार भी कई प्रकार से उसका स्वागत करती है. यदि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी जगह पर कॉलेज खोलना चाहता है, स्कूल खोलना चाहता है, तो सारी व्यवस्था को उसके साथ खड़े होना चाहिए. अन्य शिक्षाविद भी उसके साथ खड़े होंगे और सभी को अच्छा लगेगा अगर उस क्षेत्र में कोई अच्छा कॉलेज इंस्टीट्यूशन बनता है. और जहाँ तक आपने जो बात कही है, ट्राइबल एरियाज़ में बहुत से लोगों ने जाके अच्छा काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया है और बहुत से लोगों के नाम सारे देश में लोग जानते हैं जिन्होंने किया, बड़ी बड़ी जगहों पर काम किया. कोसबाद की पहाड़ियों में अनंताई बाग का नाम आज भी लोग याद करते हैं. सर, नागपुर से दर्शक हैं, पहले उनका प्रश्न लेते हैं. जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है. कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए. जी, प्रश्न पूछिए. हेलो, नागपुर यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ से चंदू पाटिल बोल रहा हूँ. सर, जो अपने नए पॉलिसी है उसमें जिसके अंदर में जो नए लेक्चर अपॉइंटमेंट होते हैं तो उसमें जो नेट का क्राइटेरिया रखा गया है, नेट का, तो इसके जो पेपर चेक होते हैं उसकी जो अपनी कॉपी मिल सकती है क्या? ऐसा कुछ प्रावधान अभी नए इसमें कुछ करने वाले हैं? आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, कृपया आप फिर से प्रश्न पूछे. हेलो जी. हेलो जी, पूछिए. हेलो, अभी जो हेलो जी, प्रश्न पूछिए. ट्राइबल एरिया से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है. हमारे कॉलेज में, हमारे एरिया में बहुत सारे कॉलेजेस अभी मिल चुके हैं, उसको यूनिवर्सिटी ने परमिशन दी है, लेकिन हमारे एरिया में स्टूडेंट बहुत कम है और कॉलेजेस बहुत ज्यादा हो गए हैं. स्टूडेंट हमें ढूंढना पड़ता है कि यहाँ स्टूडेंट मिलेगा या वहाँ स्टूडेंट मिलेगा. और उनको मुझे पूछना यह था कि स्टूडेंट इतने कम हैं, बाद में इतने कॉलेज ज्यादा दिए गए हैं, उसके बाद हम कैसे कॉलेज चलाए? और ये तो मैं पूछ चुकी हूँ कि उनको कैसे प्रवाह में लाया जाए, लेकिन नर्सरी से लेकर हायर एजुकेशन तक यही प्रॉब्लम्स है. तो इस बारे में पूछना था सर. थैंक यू. इसमें बहुत सीधी सी बात है कि SRCC में 100% जब कट ऑफ किया गया, 96 किया गया कॉमर्स के लिए, पहली लिस्ट निकली और एडमिशन बंद करना पड़ा. और उसमें भी इतने कुछ 70-80 बच्चे ज़्यादा एडमिट हो गए. वो क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने अपने लिए एक नाम बना लिया. अगर आपके कॉलेज का रिज़ल्ट आप बढ़िया करने के लिए काफ़ी कोशिश मेहनत करें और आपका रिज़ल्ट बढ़िया होगा 1-2 साल 3 साल, तो बाकी अगल बगल के भी जो इलाके के लोग हैं वो अपने जगह को छोड़ के आपके कॉलेज में आने लग जाएंगे. ज़्यादातर जो इंडिया का प्रॉब्लम है वो है कि कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं. आपके यहाँ ज़्यादा हैं तो यू हैव टू एक्सेल. कॉम्पिटिटिवनेस. हाँ. और एक जो अभी जो बात पहले हो रही थी कि इंडिविजुअल इनिशिएटिव की,
तो एक कॉन्सेप्ट जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो सुपर 30 का बिहार में जो एक्सपेरिमेंट है, इस तरह से अगर वहाँ पे हो सकता है, और वहाँ पे एडमिशन का क्राइटेरिया गरीबी है कि आप गरीब हैं और मेधावी हैं तभी आपका एडमिशन होगा, नो फीस, तो ऐसा स्टेट इनिशिएटिव क्यों नहीं हो सकता है? अगर कोई इंडिविजुअल उतना करने की स्थिति में नहीं है तो स्टेट शुड ऑल्सो थिंक ऑन दीज लाइंस कि अगर ओबीसी के लिए या SC/ST के लिए या ट्राइबल एरियाज़ के लिए कुछ इस तरह का इनिशिएटिव कि जहाँ पे आप कुछ बच्चों को उस लेवल तक पहुँचा देंगे जहाँ वो जनरल कैटेगरी में बाकियों से बेहतर हो जाएं। इनके सवाल का एक जवाब ये भी है कि अगर आपके कॉलेज में किसी प्रोग्राम में बच्चे नहीं आ रहे हैं, किसी कोर्स में नहीं आ रहे हैं, तो कॉलेज को अपने चारों तरफ देखना चाहिए कि किस क्षेत्र में बच्चों की रुचि है, किस क्षेत्र में यहाँ के बच्चे दूसरी जगह जा रहे हैं, और उस हिसाब से अपने कार्यक्रमों में परिवर्तन करना चाहिए। पहली बात तो यह है। दूसरा, जो लोग कॉलेज खोलते हैं वे सभी यही कहते हैं कि हम समाज सेवा के लिए कॉलेज खोल रहे हैं, हम लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। भलाई में केवल कोर्स चलाना ही नहीं होता है। एक कॉलेज कैन गो टू ए विलेज, कैन गो टू 10 विलेजेस एंड सर्व देम इन वेरियस रिक्वायरमेंट्स, और उसके बाद आप देखिए कि आपकी स्वीकार्यता इतनी बढ़ जाएगी, आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी बढ़ेगी कि चारों तरफ से लोग, जैसा आपने बताया, लोग दौड़कर आपके पास आएंगे। हाँ, ये कतई आवश्यक नहीं है कि अगर हमने तय कर लिया है कि हमें फला कोर्स चलाना है, हम उसी में चलाते रहें। दूसरी बात ये भी है कि इंस्टीट्यूशन खोलते समय ये भी तो देखा जाता है कि चारों तरफ कितने इंस्टीट्यूशंस हैं, कितनी आवश्यकता है। मैन पावर प्लानिंग नाम की चीज़ प्रोजेक्ट फार्मूलेशन में बहुत आवश्यक होती है, और जो स्थिति इनके यहाँ है वो और भी कई जगह पर है। इस समय पैदा हुई है, उसके कुछ और कारण भी हैं, लेकिन मैं तो इनको यही सुझाव दूंगा कि नवाचार करके देखिए, कुछ और कार्यक्रम लेकर देखिए, और फिर देखिए आपकी कितनी प्रशंसा होती है। सर, अब समय की कमी है, इसलिए 2 चीज़ों पर अब बात करके इस प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहूँगा। एक तो आजकल दूरस्थ शिक्षा जिस पर चर्चा चल रही है, डिस्टेंस एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन, और दूसरा रैगिंग, इस पर दोनों लोग से एक बात जानने के बाद इस कार्यक्रम को खत्म करता। सर, पहले आपका किस चीज़ पे? डिस्टेंस एजुकेशन और देन रैगिंग। नहीं, डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में मेरा ये कहना है कि डिस्टेंस एजुकेशन जब अपने देश में आया सन 60-65 के समय, तो हमारी वो आवश्यकता थी और आज भी है, हमेशा बनी रहेगी। लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन में गुणवत्ता का ध्यान रखने वाले सारे तत्व शामिल होने चाहिए। अनेक बार ऐसा होता है कि हमने उसको थोड़ा सा कम किया है। मैं बीएड कॉलेज करेस्पॉन्डेंस कोर्सेज के बारे में जानता हूँ, जहाँ एक विश्वविद्यालय 40,000 50,000 को बीएड की डिग्री देता था। एनसीटी के चेयरमैन के रूप में मैंने उसको नियंत्रित किया था, मगर वो बाद में जो स्थिति हुई वो बहुत आशाजनक नहीं है, क्योंकि अध्यापकों की गुणवत्ता जैसी चीज़ें करेस्पॉन्डेंस से नहीं हो सकती। हाँ, आप एडिशन दे सकते हैं, सप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 1-to-1 इंटरेक्शन का महत्व बना रहेगा। डिस्टेंस एजुकेशन के लिए ये महत्वपूर्ण है कि जो लोग नई कोई स्किल सीखना चाहते हैं, नया जानना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, हर जगह पहुंच सकती है, हर एक को उपलब्ध है। जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए वो वरदान हो सकती है, मगर हर स्टेज पर, चाहे वो नेशनल ओपन स्कूल हो, चाहे इग्नू हो, जब तक आप उसको समकक्ष क्वालिटी नहीं देंगे, तब तक लोग उसे नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में बहस करते रहेंगे। उससे आपको हटना है, निकलना है। आपका क्या कहना है सर? एक और बात है कि हमेशा हम लोग बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ते हैं एजुकेशन को। आप हायर एजुकेशन में बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी हैं, आप और क्या कर रहे हैं डिस्टेंस एजुकेशन से? पॉलिटिकल साइंस में या हिस्ट्री में या सोशियोलॉजी में आप कोर्सेज करा करके लोगों को ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बना रहे हैं, और उनके लिए आपके पास नौकरियां नहीं हैं। तो डिस्टेंस एजुकेशन को एक समय काटने का ज़रिया बना देना, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। जैसा सर ने कहा, कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज अगर आप देते हैं वहाँ और उसमें गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं, तो डिस्टेंस एजुकेशन हमारे देश के लिए बहुत बड़ा वरदान हो सकता है। लेकिन बेसिक कोर्सेज अगर आप इस तरह से करा रहे हैं और 35% वाले जो हैं वो ग्रेजुएट घोषित कर रहे हैं आप कि अब भाई अब आगे आकर के वो प्रेशर होगा कि इतना अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ है आपके पास, दिस इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर एनी सोसाइटी। सर, लास्ट क्वेश्चन हम जानना चाहते हैं, आप आफ्टर एडमिशन और स्टूडेंट्स कॉलेज में जाते हैं, लेकिन जाने के बाद जो माहौल मिलता है, खास करके रैगिंग में, उसमें कई ब्राइट स्टूडेंट्स का देखे हम लोग पिछले कुछ सालों में अपना जीवन देना पड़ा, सुसाइड कर लिए या किसी और कारणवश।
तो इस पर सरकार तो कदम उठाई है, लेकिन और प्रैक्टिकल स्तर पर क्या आपको लगता है कि और कुछ होना चाहिए जिससे इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो? कुछ सर नहीं, आप बताइए। एक समस्या जो केवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की नहीं है, पूरे समाज की है कि मनुष्य जो एक सामाजिक प्राणी होता था वो एक इंडिविजुअल होता चला जा रहा है, और इसलिए एडजस्टमेंट का एक प्रॉब्लम हमेशा सामने रहेगा। दूसरी बात कि जब आप बहुत सारे डिमेंशन से कट करके यूनिडिमेंशनल हो चुके हैं, केवल वो पढ़ाई 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 पढ़ाई, तो छोटी सी बात भी अगर डेविएशन थोड़ा भी आ गया तो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट टू इट। तीसरी बात कि हमें खुश होने के लिए, जैसे पहले होता था हम साथ मिलकर गुल्ली डंडा खेल लिया, थोड़ा कबड्डी खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, साथ मिल करके खेलने और रिक्रिएशन का एक सिस्टम था, वो ख़त्म हो करके अब हम कंप्यूटर गेम्स में आ गए या मोबाइल या इंटरनेट पे आ गए। तो अब हम खुश होने के लिए हमारे पास बहुत सारे आयाम ही नहीं हैं, तो अब एक नई चीज़ आगे किसी को दुखी करके खुश हो लेते हैं। तो रैगिंग जो है ये सर भी आपका इस पर क्या कहना है? मेरा है, मैं 11 साल एक रीजनल इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल रहा हूँ। मैंने इस समस्या को सामने देखा है, मैंने इसके समाधान निकालने की कोशिश की। सरकारी आदेशों से ये नहीं रुकता है, ये रुकेगा केवल अध्यापकों के और संस्था के जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होगा, प्रिंसिपल हो, वाइस चांसलर हो, यदि वे बच्चों को, नए बच्चों के आने के पहले तैयार करें, उनकी मानवीय उत्तरदायित्वों को समझाएं, उनकी संवेदनाओं को जागृत करें और मानव मूल्यों की बात करें, उसमें समय दें। अगर हॉस्टल है तो हॉस्टल में 4 बार जाएं और नए बच्चों के आने पर उनको एक दूसरे से मिलाने का कार्यक्रम स्वयं आयोजित कर दें, तो निश्चित रूप से इसमें सुधार हो जाएगा। हाँ, इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और मेरा यही अनुभव है कि ये केवल अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच के संबंधों में कमी आने से खराब स्थिति में गया है। उस कमी को दूर करिए तो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। तो मित्रों, आज उच्च शिक्षा में कई बिंदुओं पर चर्चा किए और कई ऐसे भी चीज़ सामने आए जिससे हम लोग को सीखने का मिला। आगे उसको अगर हम लोग लागू करते हैं तो शिक्षा जगत में एक बदलाव भी आ सकता है। अगर सकारात्मक सोच, समग्र सोच हो तो शिक्षा जगत, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी इससे लाभ मिल सकता है। यही हम कह सकते हैं, यही हम लोग का डिस्कशन का सार रहा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज खत्म करते हैं, आज के लेक्चर को विराम देते हैं और आप सबको धन्यवाद देते हैं। और आपकी ओर से प्रोफेसर जयेश राजपूत और डॉक्टर मणिभूषण जी को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने आपके प्रश्नों को लिया और काफ़ी अच्छे तरह से अपने विचार को आपके सामने रखा। धन्यवाद। आपको धन्यवाद।